Hi everyone, this is JP Singh. I welcome you all on my channel Medicos Marathi. Hope you all are happy and healthy. My dear friends, as I told you all in my previous video that on Sunday we are going to have a special session regarding strategy and plan for upcoming exam NEET PG year 2023. So as now it is decided that in 2023 NEET PG will held and it will held on 5th of March 2023. Next will take place in next upcoming year, maybe 2024-25. Only time knows. So let's start our session without wasting any second. Here we are today for planning this upcoming time regarding this exam. So welcome my dear friends. If you feel that this session is helpful, then don't forget to subscribe my channel. Press on notification bell icon for getting updates which are coming day by day on my YouTube channel. So here we go. NEET PG on 5th of March 2023. Here a special point for you that don't count the days, make the days count. What is meaning of this line? Now you started working. Okay, जब हम कोई भी काम करते हैं, ठीक है, तो हमें टाइम को काउंट नहीं करना चाहिए. We जस्ट फोकस ऑन आवर एम. ओके, काम करते चले जाओ, ठीक है, डेज को काउंट मत करो, डोंट काउंट द डेज, जस्ट कीप ऑन वर्किंग. लेकिन इसका मैनर क्या होना चाहिए? कंसिस्टेंट, डेडिकेटेड, फोकस्ड. अगर आप वेल फोकस्ड हो, वेल कंसिस्टेंट हो, कंसिस्टेंट मीन्स रेगुलरली काम कर रहे हो, तो आपको डेज काउंट नहीं करनी है. डेज काउंट करेंगे. आप काम कर रहे हो, एक प्रॉपर पैटर्न से कर रहे हो, एक डेडिकेशन से कर रहे हो, एक डिटर्मिनेशन के साथ कर रहे हो, दैट इज गोइंग टू मेक यू सक्सेसफुल, नॉट द वे दैट यू आर काउंटिंग द डेज. अब नीट पीजी एग्जाम में कितने दिन बाकी है? 167 डेज. सो नाउ वी नॉट सी दिस दैट we have 160 days. Just we see that how we can make these days count our work, our task. We have to just focus on our aim by working regularly in consistent pattern, in a well dedicated pattern, and with well determination. So what is a simple pattern for preparing for any exam? So before starting any subject, if you are following subject wise approach, how will you go? First, attempt PYQs. Okay, simply go with PYQs. After attempting PYQs, go for the notes for that particular subject, and in the end go for the videos. So from here, by attempting PYQs, you will get ideas regarding high yield topics, important topics. So PYQs is the thing which play a key role, a vital role, an important role for preparing about any exam. Okay, any competitive exam. PYQ से हमें क्या मिल जाता है? एक आइडिया मिल जाता है टॉपिक से रिलेटेड. सो पहले PYQ अटेम्प्ट करो. अगर सब्जेक्ट वाइज अप्रोच है या फिर कैसा भी अप्रोच है, PYQs हमें अटेम्प्ट करने ही करने हैं, ठीक है. तो पहले PYQs अटेम्प्ट करोगे तो उससे क्या होगा? हाई टॉपिक्स पता चलेंगे हमें. तो पहले PYQs अटेम्प्ट करेंगे, फिर उसके बाद नोट्स रीड आउट करेंगे. नोट्स रीड आउट करने के बाद हम वीडियोस देखेंगे. तो इससे हमारा कॉन्सेप्ट जो होगा वो टोटली क्लियर हो जाएगा. ओके, सो नाउ लेट्स गो टू आवर strategy, what the plan you have to follow and how you will follow it. Okay, so there are three kind of subjects. One is short subjects which you have to give 2 to 3 days. Okay, intermediate subject which you can cover into 4 to 5 days. Long subjects where you have to give 7 days, or you can give 8 days. It depends upon your strategy plan. Here I am giving my strategy, my plan. Okay, so in short subject I included here radiology, dermatology, anesthesia, psychiatry, ENT, ortho, and forensic medicine. Okay, so my dear friends, these are short subjects, and if you start from today or if you start from tomorrow, okay, here this video is available to you in midnight, so you start from tomorrow morning. Okay, from 19 to 31st of December,
द टोटल टाइम विल बी 15 वीक्स। ओके, 19 सितंबर से लेके 31 दिसंबर तक कितनी वीक्स हो जाएंगी? 15 वीक्स। ओके, एंड हियर यू हैव टू डिवाइड दीज शॉर्ट सब्जेक्ट्स, इंटरमीडिएट सब्जेक्ट्स एंड लॉन्ग सब्जेक्ट्स। ओके, अब इसको फॉलो अप कैसे करना है? इंटरमीडिएट सब्जेक्ट में हियर यू कैन सी एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फार्मा, ऑफ्थेल, पीडियाट्रिक्स। लॉन्ग सब्जेक्ट्स में मेडिसिन, सर्जरी, पीएसएम, पैथोलॉजी और ऑब्स्काई। फॉलो अप कैसे करना है इसे? हमारे पास क्या है, 19 सितंबर से लेके 31 दिसंबर तक कितनी वीक्स है? 15 वीक्स है। ये हमारा पहला फेज है प्रिपरेशन का, या कह सकते हो फर्स्ट रिवीजन फेज। जिसने पहले कर लिया है उसके लिए फर्स्ट रिवीजन फेज, जिसने पहले नहीं किया उसके लिए फर्स्ट टाइम रिवीजन फेज। ओके, फर्स्ट टाइम अटेम्प्टिंग फेज कह सकते हो। ओके, सो इसमें क्या देखना है? रेडियोलॉजी, यहाँ से कोई भी 3 सब्जेक्ट उठा लो, ठीक है, 3 या 4, जैसे रेडियोलॉजी, डर्मा, एनेस्थीसिया उठा लिया है, इनके साथ एक इंटरमीडिएट सब्जेक्ट पिकअप कर लो, ठीक है। चलो पीडियाट्रिक्स पिकअप कर लिया, ठीक है। तो इस चीज को आप दीजिए 2 वीक्स, 19 सितंबर से लेके इसे दीजिए आप 3 अक्टूबर तक का या फिर 2 अक्टूबर तक का टाइम। कितने वीक्स हो जाएंगे? 2 वीक्स। 2 वीक्स में आप कवर अप करेंगे कितने सब्जेक्ट? 3 शॉर्ट सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे, एक इंटरमीडिएट सब्जेक्ट कवर हो जाएगा। फिर अगली 2 वीक फिर लीजिए, अगली 2 वीक में आपके साइकेट्री, ईएनटी, ऑर्था और इधर ये फोरेंसिक मेडिसिन, ये 4 सब्जेक्ट लीजिए और यहाँ से फिर एक इंटरमीडिएट सब्जेक्ट और लीजिए, ठीक है। सो टोटल हो चुकी है 4 वीक, यू हैव 15 वीक्स। सो यू कवर्ड हियर all short subjects and 2 of intermediate subject. Now you go for attempting remaining intermediate subjects into 4 weeks. So remaining 4 weeks में क्या हो जाएंगे? इंटरमीडिएट सब्जेक्ट हमारे कवर अप हो जाएंगे, ठीक है। और जो रिमेनिंग टाइम बचेगा उसमें हमारे लॉन्ग सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे। ये सब हमें कवर करना है कब तक? 31 दिसंबर तक, बिकॉज वी हैव टू गो फॉर 3 रिविजन्स बिफोर एग्जाम। सो पहली रिवीजन का फेज क्या है? वो है 19 सितंबर से लेके 31 दिसंबर। 31 दिसंबर तक आप इन्हें एक बार कर चुके होंगे। अगर आप प्रॉपर स्ट्रेटेजी, अगर आप प्रॉपर प्लान फॉलो कर रहे हो, जैसा मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर कि पहले 3 शॉर्ट सब्जेक्ट पिकअप करोगे, इनके साथ एक इंटरमीडिएट सब्जेक्ट पिक करना, ठीक है। इसमें शॉर्ट सब्जेक्ट्स में और एक इंटरमीडिएट सब्जेक्ट्स को आप 2 वीक्स दे सकते हो। जैसे ही शॉर्ट पूरे होंगे उसके बाद आप इंटरमीडिएट सब्जेक्ट है इनमें 4 to 3 डेज दीजिए और ये 2 वीक्स में फिर ये कवर हो जाएंगे। रिमेनिंग टाइम में बचेंगे वो लॉन्ग सब्जेक्ट बचेंगे, ठीक है। लॉन्ग सब्जेक्ट्स आपको कवर करने हैं कब तक? 31 दिसंबर तक। इसमें टाइम बच जाएगा, ठीक है। बीच में आप एक दिन का गैप रख लीजिए, ठीक है। इसी बीच आपको जीटीज भी अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। और जीटीज अटेम्प्ट करने का सीन क्या है? 1 GT in 2 weeks. I will suggest that you attempt or you go for 1 GT grand test in 2 weeks. You can go for 2 also if you are suitable, if you are comfortable that you had done your preparation already and you are going through revision now, so you can attempt 2 also. But if you are comfortable only, then I will recommend only 1 GT in 2 weeks. Okay, and here you can see long subjects. So I hope that you will cover up all these subjects till 27 or 28 December, and you will get 2 to 3 days time to relax yourself and go for second phase of revision. Your second phase of revision will start from 1st of January and it will go up to, according to me, till 15th of February. Okay, till 15th of February it will go up to, okay. And after 15th of February your third phase of revision will start and it will go from 16 of February to 5 of March. So my dear friends, you can follow this phase of period for revising your subjects. So what is the pinpoint for your preparation? It is 15 weeks from today till 31st December. आज से अगर आप शुरुआत कर रहे हो, अभी तो ये वीडियो लेट अवेलेबल हो रही है, तो आप कल से स्टार्ट कीजिए इसे। कल से मतलब 19 of September to 31st of December। कितनी वीक्स है? 15 वीक्स। और इसमें एक पैटर्न मैंने जो बताया है, शॉर्ट सब्जेक्ट के साथ एक इंटरमीडिएट सब्जेक्ट पिकअप कीजिए, 3 या 4 आपने शॉर्ट सब्जेक्ट लिए तो उसके साथ इंटरमीडिएट सब्जेक्ट पिकअप कीजिए, और 31st of December तक आपको
ऑल 19 सब्जेक्ट्स को क्या करना है, वन टाइम रिवाइज अप करना है, वन टाइम बाइंड अप करना है। अगर आप वो टाइम पीरियड फॉलो कर रहे हो कि 2 to 3 days फॉर शॉर्ट सब्जेक्ट्स, ओके, 4 to 5 days फॉर इंटरमीडिएट सब्जेक्ट्स एंड 5 to 7 days फॉर लॉन्ग सब्जेक्ट्स, then you are gonna cover it easily till 31st of December। 31st of December के बाद 1 जनवरी से लेके 15 फरवरी तक आपकी होगी सेकेंड फेज ऑफ रिवीजन, क्योंकि आपने PYQs अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है, और आपने सारी टॉपिक्स को रिवाइज कर लिया, तो अब आपके पास आ जाते हैं हाई एल्ड टॉपिक्स। तो इसमें क्या करना है आपको, 1 जनवरी से लेके 15 फरवरी तक जो सारे हाई एल्ड टॉपिक्स आपने पिकअप किए हैं, मार्कअप किए हैं कि सबसे ज्यादा एग्जामिनर क्वेश्चन इसी टॉपिक से पूछ रहा है, तो उन टॉपिक्स को क्या करना है, अब कवर अप करना है, ठीक है। अब बात बचती है थर्ड फेज ऑफ रिवीजन। थर्ड फेज ऑफ रिवीजन में क्या करना है, थर्ड फेज ऑफ रिवीजन कब से है, वो है 15 ऑफ फरवरी से लेके 4 ऑफ मार्च तक, क्योंकि 5 को तो एग्जाम ही है। तो इस फेज में क्या करना है, इस फेज में सारी इमरजेंसी कंडीशंस, ठीक है, सारी चीजें जो आप भूल सकते हो, ठीक है, रट्टा मारने वाली चीजें, ठीक है, सारी इमेजेस, सारी रट्टा मारने वाली चीजें, सारी इमरजेंसी कंडीशंस, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट्स की इमेजेस आपके पास क्या होनी चाहिए, अवेलेबल होनी चाहिए। और जो हाई एल्ड टॉपिक्स आए थे उनसे रिलेटेड इमेजेस, स्पेशली उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड कोई इमरजेंसी कंडीशंस, ठीक है, images are playing a very important role these days, okay। And on my channel you can also get image session, the playlist is image bank, it is available on my YouTube channel, go and check it out। and this image bank is very important playlist। इस प्लेलिस्ट में आपको ऐसी इमेजेस मिलेगी जो पीछे एग्जाम में बहुत बार पूछी जा चुकी है, सारी इमेजेस PYQ से फिलअप है, सो इट इज अ इम्पोर्टेंट प्लेलिस्ट फॉर यू ऑल, ओके। और GTs का तो मैं बोल चुका हूँ कि बेटर यही रहेगा कि आप स्टार्ट जब करें अभी से, फर्स्ट फेज ऑफ रिवीजन जो है उसमें क्या है कि ज़्यादा टाइम हमें कवर अप करनी है, हमें रिवाइज करना सब्जेक्ट, तो 2 वीक्स में आप एक GT अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। जब सेकंड फेज ऑफ रिवीजन आएगा तब आप रेगुलर हो जाइए, 1 वीक 1 GT, okay। So my dear friends, it is a strategy, it is a plan for you all. If you will follow it, then you are surely going to go through 3 phases of revision, and I hope that after following this, I can't guarantee it, but if you are following it with proper dedication, proper determination, then success is sure for you, okay। You have very vast time, 167 days are not less, okay, क्योंकि 168 को तो आपका एग्जाम ही है, तो ये 167 डेज अगर डेज को काउंट करोगे तो ऐसे लगेगा जैसे बहुत कम है, लेकिन अगर आप अपने हार्ड वर्क, आप अगर अपने एम को लेकर वेल फोकस्ड डेडिकेटेड रहोगे तो आपको डेज काउंट करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ काम करते चला जाना है, ठीक है। आपको एक खुद को एक टारगेट देना है कि यस मुझे इस टाइम तक ये काम करना है, then you are gonna go for it in a very proper pattern, okay my dear friends, here we go, let's break it। what are the rules you can follow it, what are the rules you might include, आपके खुद के कुछ रूल्स होंगे एग्जाम को लेके, आपके खुद के रूल्स होंगे खुद को लेके कि मैं प्रॉपरली डेडिकेटेड कैसे रह सकता हूँ। यू हैव टू बी रिस्पेक्टफुल, किसके रिगार्डिंग, अपने एम के रिगार्डिंग। अब जिस प्रोफेशन के लिए हम ये एग्जाम देने जा रहे हैं उसकी रिस्पेक्ट तो हमें करनी होगी, ठीक है। बी रिस्पॉन्सिबल, किसके लिए, अपनी स्टडीज के लिए। बी फोकस्ड फॉर योर एम, फॉर योर स्टडी। बी पंचुअल, एक रेगुलरिटी जिसे मैं कह रहा था, कंसिस्टेंसी। बी ऑर्गेनाइज्ड, बी ए सेल्फ स्टार्टर, बी प्रिपेयर्ड, और लास्ट में जब एग्जाम हो जाएगा फिर रिजल्ट आएगा, a successful person, okay। you will get good grades, you can follow up these rules। just I will say 3 Ds are very important: determination, okay, dedication, and your devotions, how you are devoted, how you are dedicated, how you are well determined। so properly if you are following these 3 things, determination, dedication, devotion, you are gonna go with good grade in your exam। so my dear friends, here we are going to end this session by image in, so my dear friends, here we go for the image, and we are going to end this
session by supporting proper answer regarding this image. So here you go. You have to spot out this arrow marked region. What is this arrow marked area? What this image is telling you about? So images are very important. With our current pattern of exam, images are always important, but this time images are playing a very important role. So you have to pick up here correct answer regarding this image. So my dear friends, this image, this spotted area is showing you here stellate granuloma. What is it? Stellate granuloma. Stellate granuloma, it is associated with two diseases. One is cat scratch disease and another one is lymphogranuloma venerum. Cat scratch disease, it is caused by Bartonella Hansley and it is stained by Warthin starry silver stain. Okay, सो स्टीलेट ग्रेनुलोमा हमें कौन से दो डिजीज में दिखेगा? पहला है कैट स्क्रैच डिजीज, दूसरा है लिम्फोग्रेनुलोमा वेनेरम। कैट स्क्रैच डिजीज का पॉजिटिव एजेंट है बार्टोनेला हैंसले और उसको स्टेन अप हम करेंगे वार्दिन स्टारी सिल्वर स्टेन से। वार्दिन स्टारी सिल्वर स्टेन एक इंपॉर्टेंट स्टेन है और ये जो जितने भी इंपॉर्टेंट स्टेन हैं ये पहले भी मैं कवर कर चुका हूं। हमारी एक प्लेलिस्ट है यूट्यूब चैनल पर, उसका नाम है स्पेशल स्टेन्स। ओके, तो उसमें क्या है, सारे जितने भी स्पेशल स्टेन्स है उनको मैंने अलग अलग कवर अप किया है। सो देयर यू कैन गेट वार्दिन स्टारी सिल्वर स्टेन। ओके, वार्दिन स्टारी सिल्वर स्टेन हम कहाँ कहाँ यूज करेंगे वो आपको उस वीडियो में मिल जाएगा और उस वीडियो का जो लिंक है वो भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, वो पूरी प्लेलिस्ट का नाम क्या है? स्पेशल स्टेन्स। उसमें सारे स्टेन्स हमने कवर किए हैं। ठीक है, एलजीवी क्या है? लिम्फोग्रेनुलोमा वेनेरम। ठीक है, कोज्ड बाय इन्वेजिव सीरोवार्स L1, L2, L2A, L2B, L3 ऑफ क्लेमाइडिया ट्रैकोमाइटिस। ओके, तो इसमें L2 जो वेरिएंट है क्लेमाइडिया का वो इंपॉर्टेंट पॉजिटिव एजेंट है किसके लिए? लिम्फोग्रेनुलोमा वेनेरम के लिए। और ये इमेज क्या शो कर रही है हमें? स्टीलेट ग्रेनुलोमा। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इमेज इज आस्क्ड ऑलरेडी इन प्रीवियस ईयर्स। ओके, कैट स्क्रैच डिजीज बहुत बार आ चुका है और ये इमेज भी पहले भी पूछी जा चुकी है और वार्दिन स्टारी सिल्वर स्टेन के रिगार्डिंग भी पहले क्वेश्चन आ चुके हैं। तो यहाँ पर इमेज कवर हुई, स्टीलेट ग्रेनुलोमा कवर हुआ, कैट स्क्रैच डिजीज कवर हुआ। ठीक है, क्योंकि उसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आया है, उसके पॉजिटिव एजेंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, सो माय डियर फ्रेंड्स, इमेज आर वेरी इंपॉर्टेंट। यू कैन गेट दिस इंपॉर्टेंट इमेज इन माय प्लेलिस्ट इमेज बैंक। हमने इमेज बैंक में PYQ में जितनी भी इमेजेस आई है लगभग सारी कवर की हैं। स्पेशल स्टेन्स में हमने सारे स्टेन्स कवर की हैं। सो गो फॉर दिस प्लेलिस्ट्स। So let's end our session. My dear friends, thanks to everyone for watching this session. Stay safe, stay healthy. Do share this video, like this video, and don't forget to subscribe my channel.